Good morning, dear student. Today start current electricity for class 10 CBSE. In this chapter, first term is charge. What is charge? Charge, the number of free electrons in a conductor is called charge. The number of free electrons in a conductor is called charge. The number of free electrons in a conductor is called charge. Do you know what is conductor? What is conductor? In which current electricity flow easily is called conductor, and this is a conductor, and this is a insulator. What is the difference of conductor and insulator? आपका जो कंडक्टर होगा उसमें आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? फ्री टू मूव। वहां पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या करेंगे? फ्री टू मूव। सो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट होता है। दिस इज कॉल्ड कंडक्टर, फ्री टू मूव। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, एक्सेट्रा। एंड इंसुलेटर, इंसुलेटर में आपका क्या होगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके क्या होंगे? फिक्स होंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड। सो इसमें आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, दैट्स ऑल। क्लियर? व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर? ठीक है। The number of free electrons in a conductor is called charge, and charge is denoted by Q is equal to plus minus NE. Charge is Q is equal to plus minus NE. What is N? N is the number of free electrons. Number of free electrons. And what is E? E is the charge of electron. What is the charge of electron? 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Minus 19 coulomb. And coulomb is the unit of charge. SI unit of charge is coulomb. It is denoted by C. Is that clear? Okay. Next term is current. What is current? What is current? आपका चार्ज से करंट डिफाइन होगा। Here is the number of free electrons in a conductor is called charge, and current is the flow of charge in a conductor per unit time. The flow of charge, try to understand the flow of charge. The flow of charge in a conductor per unit time. Per unit time. Per unit time. This is called current. It's called current. Clear? What is current? And current is denoted by I, and it is equal to charge per unit time, Q by T. Charge is Q time T. करंट आपको फॉर्मूलाज, अगर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता है तो आप डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। I is equal to Q by T. The flow of charge in a conductor per unit time is called current. And current is I is equal to Q by T. What is the SI unit of current?
you can find out from the here q. अभी मैंने बताया what is the unit of charge. Unit of charge is coulomb. C, it is denoted by C, coulomb. C, and what is the unit of time is second. This is coulomb per second. What is the unit of current is coulomb per second, and SI unit, a standard SI unit of current is ampere. What is ampere? क्लियर? इसको हम A से भी डिनोट करते हैं, ओनली A. आपको न्यूमेरिकल्स में आपको क्या गिवन होगा? ओनली A आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा. इट मीन्स current is suppose 5 ampere, 3 ampere, so it is denoted by A. Okay, चलो next. यहाँ समझ आया बच्चों? Charge and current. Simple. Charge, the number of electrons in a conductor is called charge, and current is the flow of charge in a conductor per unit time. I is equal to Q by T, and its SI unit is ampere. इसको शॉर्ट भी लिख सकते हो AMP, एम्पियर. क्लियर? ओके. एंड कंडक्टर, इंसुलेटर आपको डिफाइन हो गया. कंडक्टर में क्या होगा? कंडक्टर्स में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री टू मूव होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे मूव करने के लिए. बट इंसुलेटर में ऐसा नहीं है, वहां पे आपका फिक्स होगा. सो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट नहीं होगा. क्लियर? ओके. नेक्स्ट टर्म इज next term is potential difference and electric potential. This is very important terms, potential difference and electric potential. First मैं आपको डिफाइन करूंगा potential difference. Potential difference. देखो, what is potential difference? आपका पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको सिमिलर टर्म लग रही है. डेफिनेशन भी सिमिलर, बस स्लाइटली डिफरेंट होगा. ये आपका बोर्ड के एग्जाम में काफी मेनी टाइम्स आ चुका है, सीबीएसई में एटलीस्ट. देखो, पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन the work done to bring a unit positive charge from one conductor to another conductor. The work done to bring a unit positive charge from one conductor to another conductor. Suppose this is a 2 point A and B. A and B. Here is the unit positive charge Q. आपको क्या करना है? आपका Q यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको आपको क्या करना है? B to A शिफ्ट करना है. तो यहां से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां अप टू A तक शिफ्ट होने में जो वर्क डन होगा, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. इज दैट क्लियर? हेंस इट इज डिनोटेड बाय V. V is equal to W by Q. V is equal to W by Q. So very important formula. Is that clear? Okay. Its SI unit is volt. SI unit of potential difference SI unit of potential difference is volt. एंड यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो वर्क डन का क्या होता है? जूल एंड चार्ज कूलम, यानी कि जूल पर कूलम.
ये भी हो सकता है एंड वोल्ट आपका स्टैंडर्ड एसआई इंटरनेशनल सिस्टम, हम इसको एसआई यूनिट्स को यूज करते हैं ऑल यूनिवर्स में। सो आपका ये ठीक है। चलो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, सिमिलर है बस थोड़ा सा डिफरेंस है स्लाइटली। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अभी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बताया। पोटेंशियल डिफरेंस इज दैट work done to bring a unit positive charge from one point to another, sorry, one conductor to another conductor. And electric potential is defined as the work done to bring a unit positive charge from infinity to इनफाइनाइट टू, या इसको सिंबल से भी डिफाइन कर सकते हो, इनफाइनाइट टू अनदर कंडक्टर या अनदर पॉइंट, इनफाइनाइट टू अनदर पॉइंट। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। What is the difference of electric potential and potential difference? वहाँ पे आपका वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर वर्क डन था, यहाँ पे आपका इन्फिनिटी टू अनदर पॉइंट, लाइक दिस। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी and here is the infinity and here is q naught, means unit positive charge, ठीक है। and what is the electric potential? Electric potential is that VA minus VB is equal to work done upon charge. VA minus VB is equal to W by Q naught. Is that clear? आप सिंपली भी लिख सकते हो इसको V इक्वल टू W बाय Q नॉट। ये सेम है, Q नॉट इट मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आप लोगों ने थोड़ा डिफरेंस लिया है Q और यहाँ पे Q नॉट। इज दैट क्लियर? ओके। एंड इट्स यूनिट ऑल्सो वोल्ट, इट्स SI यूनिट इज ऑल्सो वोल्ट। क्लियर? समझ आया आपको पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? The work done to bring a unit positive charge from one conductor to another conductor is known as potential difference, and the work done to bring a unit positive charge from infinity to another point is called electric potential. Clear? Now resistance. Now resistance से पहले मैं आपको एक लॉ बताऊंगा, ओम्स लॉ। Then after that we can explain resistance and resistivity. Ohm's law. What is Ohm's law? Ohm's law is that at constant temperature, potential difference is directly proportional to the flow of current in a conductor. At constant temperature, potential difference
मैं पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में शो करूंगा पीडी। पीडी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the flow of current in a conductor। ठीक है, दिस इज Ohm's law। At constant temperature, potential difference is directly proportional to the flow of current in a conductor। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन इसका होगा V is directly proportional to I। V is directly proportional to I। एक बार जब भी आपका सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगा देन आपका एक एडिशनल आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। हियर इज हम इसको रिमूव कर सकते हैं तो V is RI। V is equal to RI। क्लियर? Here V is the potential difference, I is the current and R is the resistance। एक नई टर्म निकल गया है सामने, रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। अभी आपके माइंड में एकदम से आएगा व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को भी हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? लेट अस सी रेजिस्टेंस। देखो आपको फॉर्मूले से ही एक्सप्लेन करूंगा। R इज इक्वल टू यहाँ से V अपॉन आई आएगा। R इज इक्वल टू V अपॉन आई। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देखिए जरा, करंट आपका इंक्रीज होगा देन रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली आपका डिनोमिनेटर में आपका करंट है, नीचे आपका करंट है। आपका करंट इंक्रीज होगा, जितनी ज़्यादा नीचे वैल्यू आएगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होगी। इट मीन्स रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस क्या करता है? आपका फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है। इट इज द अपोज फ्लो ऑफ करंट। तो यहीं से आपका करंट रेजिस्टेंस आपका डिफाइन होगा। व्हाट? रेजिस्टेंस इज ए property of a conductor। Resistance is a property of a conductor which oppose the flow of current। ठीक है, आपका करंट को फ्लो होने से क्या करेगा? अपोज करेगा उसको। जैसे आपका सपोज ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट आपका सप्लाई हुआ, देन आपके होम तक कितना आएगा? 20 का आएगा। वो आपका एज ए रेजिस्टेंस जो होगा आपका एल्यूमिनियम वायर्स में कंज्यूम हो जाएगा। दिस इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। और इसका एक फॉर्मूला भी है, वो मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के साथ ही एक टर्म आती है रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? अभी मैं दोनों को सिमिलर एक साथ डिफाइन करता हूँ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब आप पूछोगे कि रेजिस्टिविटी कहाँ से आई? तो रेजिस्टेंस अभी मैंने एक्सप्लेन किया, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर which oppose the flow of current and it is denoted by R and R is equal to rho L upon A। Rho L upon A, this is the resistance। It's okay। Resistance is the R is equal to rho L upon A। देखो अभी
ये जो फॉर्मूला है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द रेजिस्टेंस। और एक बात, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस is O, is denoted by this symbol O. Is that clear? Okay. And L is the length of wire. Length of wire, या फिर आप बोल सकते हो कंडक्टर। Is that clear? And A is the cross section area. Cross section area of conductor. अब आप बोलोगे व्हाट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। सपोज दिस इज ए वायर, दिस इज ए कंडक्टर और वायर लाइक दिस। आपका वायर ऐसे ही होगा लेंथ में, तो आपने सपोज यहाँ से कट किया, तो ये जो आपका ये वाला एरिया होगा, दिस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन एरिया। इज दैट क्लियर? अभी इसमें एक्सप्लेन करेंगे किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज ए। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फैक्टर अफेक्टिंग टू द रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग टू द रेजिस्टेंस। उसके आपके 4 फैक्टर्स होंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले मैं रेजिस्टिविटी बता देता हूँ। रो एक टर्म बची है यहाँ पे, व्हाट इज रो? रो इज द रेजिस्टिविटी। अब आप पूछोगे व्हाट इज रेजिस्टिविटी? Resistivity, देखो resistance is the property of a conductor, but resistivity is the property of a material. कि which type of material you can use, like aluminium, copper, nichrome, tungsten। तो आपका जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा उसका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। तो आपके आयरन वगैरह नाइक्रोम या टंगस्टन होता है, सपोज आपका बल्ब होता है, बल्ब में क्या लगता है? टंगस्टन या नाइक्रोम, जो भी टंगस्टन, तो उसका जो रेजिस्टिविटी होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, वो इजीली मेल्ट नहीं होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज़्यादा हाई होगा, 3300 समथिंग 70 अप्रोक्स, इतना उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और मेल्टिंग पॉइंट आपका जितना हाई होगा उतना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक, तो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटीरियल। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, ये आपका डिफाइन यहीं से होगा। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटीरियल। रेजिस्टिविटी is the property of a material. Is that clear? Okay. And rho is equal to RA upon L. ये आपके एग्जाम में आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे 10 CBSE में इन फॉर्मूलाज पे काफ़ी हद तक आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ठीक है, तो नाउ रेजिस्टिविटी समझ आया। रो यहां से किया मैंने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन वी कैन फाइंड रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, दैट्स इट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं भी आपको बता रहा हूं, फैक्टर अफेक्टिंग टू द रेजिस्टेंस। factor affecting to the resistance। आपका जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करेंगे 4 फैक्टर्स होंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैनी टाइम्स आपका बोर्ड में आ चुका है और NCERT में भी है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ मटेरियल। आपका मटेरियल का नेचर क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। आपका एल्यूमिनियम है या फिर आपका कॉपर है, कॉपर इज द बेटर देन एल्यूमिनियम। ठीक है, उसका रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होता है। नाइक्रोम इज ऑल्सो बेटर देन द एल्यूमिनियम, बट उनको इसलिए यूज़ नहीं करते हम एल्यूमिनियम पोल्स पे यूज़ करने, बिकॉज इसे चीप कॉस्टली नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा फाइनेंशियली भी देख के चलना होता है। सेकेंड वन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ मटीरियल सेम। थर्ड वन इज लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी लिख सकते हो वायर। ठीक है, टेक्निकल लिखे आप कंडक्टर। फोर्थ वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इज दैट क्लियर? तो ये आपका ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, आपका टेम्परेचर कितना हो सकता है राइज, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं मेनी टाइम आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स आपको लर्न करना। फैक्टर अफेक्टिंग टू द रेजिस्टेंस, फर्स्ट इज नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। इज दैट क्लियर? ओके। ये कैसे डिपेंड करता है? आर इक्वल टू सॉरी इट्स ओके। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको लास्ट टर्म एक मैं बता दूं, आपका जो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो आप इस सिंबल से डिनोट करेंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। टुडे वी फिनिश हियर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, एंड हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू सो मच।